और केवल जब जिसको बोलना है वही अपने आप को अनम्यूट करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। So now, डॉक्टर भूषण डॉक्टर साहब नमस्ते। प्रोफेसर शिशिर रॉय। हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। सब लोग हमारे पास हैं। Now we are formally starting this dialogue. Let me first welcome our honored guests today, Professor Sisir Roay. Professor Sisir Roay is a visiting professor and senior Homi Bhabha Fellow in National Institute of Advanced Studies, Bangalore. And let me inform that he is the topmost Indian physicist today. And our second respected guest is Acharya Agnivrata Naishthika. Acharya Agnivrata Naishthika, in recent years, he has published 4 volumes book on Veda Vigyan Alok. And he has done a lot of work on physics. And I think he translated Acharya Brahman. And while translating that Acharya Brahman, he has produced this voluminous work. So he is also Vedic authority on Vedic physics, and we have a lot of respect for both the scholars. मैं आप लोगों का परिचय कराऊं। मेरे पास जो हमारे सम्मानित आज के अतिथि हैं प्रोफेसर शिशिर रॉय हैं, जो कि विजिटिंग प्रोफेसर हैं और सीनियर होमी भाभा फेलो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बेंगलोर में। और मेरे साथ प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान हैं आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक। आचार्य अग्निव्रत जी ने अभी कुछ वर्ष पहले 4 वॉल्यूम में वेद विज्ञान आलोक नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया है। वॉल्यूमिनस वर्क है और करीब उसकी कीमत भी 20,000 रुपये है, परंतु आजकल 10,000 रुपये में मिल जाती है। और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका अनुवाद के माध्यम से इस ग्रंथ को लिखा है। और आपने फिजिक्स पे, वैदिक फिजिक्स पे बहुत काम किया है। तो एक तरफ हमारे साथ जो मॉडर्न फिजिक्स के स्कॉलर हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ जो एंशिएंट फिजिक्स है उसके विद्वान हैं। तो मैं आपको बताऊं इस डायलॉग का प्रोटोकॉल क्या होगा। इस डायलॉग का प्रोटोकॉल ये है कि ये कोई डिबेट नहीं है, ये सिंपल प्रश्न उत्तर के रूप में है। प्रोफेसर शिशिर रॉय, क्योंकि वो जो कुछ मॉडर्न फिजिक्स में मिसिंग लिंक्स हैं वो उनको जोड़ना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से कुछ प्रश्न पूछेंगे और आचार्य जी उनके उत्तर देंगे। दूसरे, अगर इस डायलॉग के अंत में आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया आप मुझे सूचित करें। आपके जो प्रश्न हैं दोनों विद्वानों तक पहुंचा दिए जाएंगे और जो इनका उत्तर होगा आपको दिया जा सकेगा। So now I'm just going to tell you the protocol of this dialogue. Let me inform, this dialogue is not a debate. It's just a formal question answer type of dialogue, because Professor Sisir Roay is a modern physicist and he wants to find certain missing links in physics or Vedic cosmology. So with that point of view, he is going to ask certain question from Acharya Agnivrata Naishthik, and whatever answers he will give, according to those answers, he is going to find out whether he is able to find out those missing links or not. So at the end of this dialogue, if you want to ask certain questions, you please send your queries to me. I will pass on your questions to both the scholars, and whatever reply is received from them, they will be passed on to you. So I think everybody knows about my email address. This is vedicscience@gmail.com, vedicscience@gmail.com. And before to start this dialogue, let me inform some of the top scholars are also attending this dialogue. We have Professor Chand Bharadwaj. We have Dr. Alka Arya, she is the director of DDA in Delhi. We have Dr. Arun Kumar Upadhyay.
is a retired IPS officer and has a lot of interest in Vedic sciences, and he has written a lot of books also. We have Professor Ramesh Bharadwaj here. He is the Vice Chancellor of Kaithal Sanskrit University. And from many countries we have scholars. We have Bhuvan Datta from Fiji. We have Satish Bihari from Mauritius. We have Ashwini Rajpalji from Canada. We have S. Ramlal from Canada, and several other scholars are there. And we have Vishnu Errol Ramswarup from Trinidad and Tobago. All these scholars, they have gathered over here just to hear this dialogue. तो अब इस डायलॉग को हम प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर शिशिर रॉय से, वो कुछ कहना चाहते हैं तो पहले कहें और फिर अपने प्रश्न स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर शिशिर रॉय। Namaste, good evening. Namaste. And this is, I will speak in English, of course, because no problem. my Hindi knowledge is very, very poor. No And problem. I will request Ravi ji Yeah. translate it into Hindi, and Yeah. whatever the response from Acharya ji, you can translate it into English. That will, Yeah, no problem. Yes. otherwise, there will be problem of language itself. Yeah. So recently I came to know about a book by Acharya ji, and its English translation of glimpse of this book in Veda Vigyan has been done by Vishal Arya. So I got a copy of the book. It seems to be quite fascinating in the following sense, because it discussed a lot of issues on cosmology, which we discussed in modern science. So, to communicate the message of this ancient wisdom or Vedic wisdom to the community, especially scientific community, we need to clarify some of the issues, because we speak in different language rather than the traditional scholars. They speak in the different language, and also the methodology we use in modern science is quite different from the methodology used by our ancient seers. So let me start with very simple queries. Like, I mean, we are thinking this problem for many years, but we don't get the reply or the answers of this type of query. The query is in physics, especially in modern physics, the concept of matter is there. So in this book, not only the term matter, but substance is also used. So is there any difference between matter and substance? Because when you take a term in Sanskrit and then we translate it into English, maybe there is some kind of problem. The first one, what is whether matter and substance are the same or not. Secondly, the second one, what is the definition of the matter in Vedic wisdom? So let us start with this. ठीक है, तो प्रोफेसर शिशिर रॉय जी कह रहे थे कि इनको आचार्य जी के द्वारा, आचार्य जी की पुस्तक जो वेद विज्ञान आलोक है, उस पर आधारित इंग्लिश में विनीत आर्य के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक मिला, और विशाल आर्य, उस विशाल आर्य के पुस्तक को जब प्रोफेसर शिशिर रॉय ने पढ़ा तो उसमें बहुत से मुद्दों पर बात की गई थी फिजिक्स से संबंधित। तो इनको ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और ये प्रोफेसर शिशिर रॉय स्वयं काफी वर्षों से कुछ जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन पर काम कर रहे थे। तो इससे इनकी एक रुचि बढ़ी कि इस विषय में कुछ आचार्य अग्निव्रत जो नैष्ठिक जी की जो वैदिक साहित्य में जो पांडित्य है उसका लाभ उठाया जाए। तो पहला प्रश्न इनको वहां पर लगा, इनकी पुस्तक में लिखा है जो मैटर और सब्सटेंस, उसको दो अलग अलग शब्द लिखे हैं, द्रव्य शायद लिखा होगा आपने, एक मैटर शब्द है,
तो प्रोफेसर शिशिर रॉय जानना चाहते हैं क्या मैटर और सब्सटेंस दो अलग अलग वो है या एक ही चीज के नाम है? द्रव्य या जो मैटर आप जिसको बोलते हैं उसके दो, क्या वो दो अलग नाम है या एक ही चीज का नाम है? दूसरे ये जानना चाहते हैं कि जो मैटर जिस शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है? आचार्य जी। पहली बात, हिंदी में ये हमारे यहाँ द्रव्य है और पदार्थ। या इंग्लिश में द्रव्य के लिए भी कोई अच्छा शब्द नहीं है। जो वैदिक साइंस में द्रव्य कहलाता है वह ऐसा पदार्थ जिसमें गुण हो, जिसमें क्रिया हो, वह द्रव्य कहलाता है। लेकिन साइंस में द्रव्य का कोई समानार्थक शब्द नहीं मिलता। ठीक ठीक जी मैटर द्रव्य का समानार्थक नहीं है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले ने इसको मैटर यूज किया और कोई शब्द था ही नहीं। आप पदार्थ वाली बात, पदार्थ। वैदिक में जो पदार्थ कहते हैं जी वैशेषिक के अनुसार जी द्रव्य भी पदार्थ है, प्रॉपर्टी भी पदार्थ है, जी कर्म भी पदार्थ है। जी। इसलिए पदार्थ के लिए भी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। तो ये अंग्रेजी भाषा का दोष है कि पूरी तरह से हम उसको वैदिक पदों को अंग्रेजी में डिफाइन नहीं कर सकते, उसको नहीं जी बता सकते, कोई समानता शब्द है नहीं। जी जी जी। तो इसीलिए ये जो इसको मैटर मैटर लिया शब्द है, है, दूसरा कोई शब्द नहीं था। तो पदार्थ मैटीरियल, शब्द को मैटर के नाम से प्रयोग किया गया है, ये कहना चाहते हैं? हाँ, जी। द्रव्य तो को मेटीरियल शब्द से प्रयोग किया। शिशिर जी, ही वांट्स टू से पदार्थ को मेटीरियल शब्द से प्रयोग किया है। पदार्थ को वास्तव में पदार्थ मेटीरियल नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है पदार्थ के लिए। या शिशिर जी, he wants to say in Vaisheshik Darshan two terms have been used. One is padarth and another is dravya. So there is no synonymous term for padarth in English. So the English translator later he has used the word matter just to denote padarth, and the word substance has been used for dravya, just to translate as a translation of the word dravya used in Vaisheshik Darshan. And he says the definition of dravya has been given in Vaisheshik Darshan, that which has qualities and motion, action, that is dravya. Yeah, okay. But in physics, we have a very specific definition of matter, what we call matter. Yeah. Now, the problem is that how do you compare? I mean, if you want to understand modern physics, Yeah. matter plays very important role. Concept of matter. So, whether that concept of matter, what we use in modern physics, is already there in Vaisheshika or any other text. Yeah. आचार्य जी, प्रोफेसर शिशिर रॉय कहना चाहते हैं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें मैटर का स्पेसिफिक वो है और उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। यदि ये जानना चाहते हैं कि क्या वैशेषिक दर्शन में मैटर के लिए कोई शब्द, जो मॉडर्न फिजिक्स का मैटर है, क्या उसके लिए वैशेषिक दर्शन में कोई शब्द प्रयोग हुआ है? क्योंकि जब तक कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकता मॉडर्न फिजिक्स की मैटर की डेफिनेशन के साथ, जब तक हम वैदिक सिस्टम में मैटर की कोई, जो मॉडर्न फिजिक्स का मैटर है, उसकी कोई डेफिनेशन हमें न मिले। मैं मैटर, मॉडर्न साइंस में मैटर की डेफिनेशन जानना चाहूंगा। He wants to know the definition of matter in modern science. Yes, the definition is the following. I mean, the entity which occupies space-time, and Definition, okay, and capable of being at rest or in motion. ये कहते हैं कि डेफिनेशन, मैटर की डेफिनेशन है वो एंटिटी, वो तत्व जो स्पेस और टाइम लेता है और जिसका which has capable of having being in the rest or in motion. हाँ, जो या तो रेस्ट में रहेगी या गति में रहे, वो पदार्थ
जो स्पेस और टाइम लेता है, जिसमें स्पेस और टाइम आता है, या स्पेस और टाइम को वो करता है, और जिसम या तो वो रेस्ट में रहेगा, स्थिति में रहेगा, या गति में रहेगा, उसको मैटर कहते हैं। पहले तो फिजिक्स में स्पेस की परिभाषा निश्चित नहीं है। ये कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ स्पेस इज नॉट मींस स्पेसिफिक इन फिजिक्स। No, it's very specific. We have a very specific definition of space and time. स्पेस और टाइम की एक निश्चित परिभाषा है फिजिक्स में। Say in the Newtonian regime, space and time has one connotation. On the other hand, in 20th century, in Einsteinian theory, space and time has different connotation, but we have definite connotation. Otherwise, we cannot formulate the laws of physics as well as study the motions of different phenomena or different entities in the physical world. वो कहते हैं कि न्यूटोनियन उसमें फिजिक्स में उसकी एक अलग डेफिनेशन है, और आइंस्टीन के यहाँ उसका एक अलग से डेफिनेशन है, परंतु डेफिनेशन है। स्पेस में मोशन होता है, कोई पदार्थ स्पेस में मोशन करता है। स्पेस मोशन के लिए स्पेस चाहिए तो और टाइम चाहिए, आप कहना चाहते हैं कि कोई पदार्थ या तो स्थिर रहेगा या मोशन करेगा, वो मैटर कहलाता है। जी जी, वो बात ठीक है, लेकिन स्पेस स्वयं मोशन करे तब क्या होगा? बिग बैंग हुआ तो स्पेस स्वयं मोशन करता है और सारे लॉज को वायलेट करता है, स्पेस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है, तो स्पेस स्वयं मोशन करता है। फिर स्पेस किसमें मोशन करता है? हम दो प्रकार का स्पेस मानते हैं जी। हमारे यहाँ दो प्रकार का स्पेस नहीं कहेंगे, आकाश। आकाश जी आकाश। एक तो है एम्प्टीनेस, ठीक है, जो किसी भी द्रव्य के लिए चाहिए जी, किसी के लिए भी चाहिए, किसी भी पदार्थ के लिए चाहिए आकाश, जो अवकाश रूप आकाश, एम्प्टीनेस। दूसरा स्पेस एक पंच महाभूत का, जिसके कंटेंट्स है, जिसमें मास भी है, जिसमें चार्ज भी है, जिसके एक स्ट्रक्चर है, वो स्पेस जी। तो पंच महाभूत का स्पेस, जो टाइम, इस पे आइंस्टीन की रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस फैलता है, स्पेस सिकुड़ता है, स्पेस डेंस होता है। ये स्पेस एम्प्टीनेस तो नहीं है। अगर ऐसा स्पेस है जो कर्व हो रहा है, जो डिस्टॉर्ट हो रहा है, चार्ज के द्वारा डिस्टॉर्ट हो रहा है, मास के द्वारा वो कर्व हो रहा है, तो स्पेस वो स्पेस तो नहीं है जो स्थान घेरता है। वो स्पेस कोई और है जो दूसरों को स्थान देता है। ये स्पेस तो स्वयं स्थान चाहिए, जो कर्व होता है, जो डिस्टॉर्ट होता है, जो डेंस होता है, उसके लिए तो स्वयं को स्थान चाहिए। तो दो आकाश हुए। तो हमारा जो दूसरा आकाश है महाभूत वाला, ये तो द्रव्य है जी जी, और जो गति करता है, जिसके लिए जो स्थान चाहिए, वो हमारा आकाश, अवकाश रूप आकाश है, एम्प्टीनेस है, वो सबके लिए चाहिए। तो द्रव्य वह है जिसके लिए एम्प्टीनेस में चाहिए, वो गति करेगा या स्थिर रहेगा, ये भी ठीक बात है। टाइम में चाहिए, ये भी ठीक बात है, लेकिन टाइम की परिभाषा, टाइम में नहीं कहूंगा, काल की परिभाषा हमारे अलग है। लेकिन उसके लिए काल चाहिए, द्रव्य के लिए काल चाहिए, और काल स्वयं एक द्रव्य भी है। तो हमारे स्पेस आकाश दो है। अब फिजिक्स कितने आकाश मानता है ये मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि एक ही मानता है। जी जी जी। He says that if some object moves in the space or time, relative to space or time, that is understandable. But in modern physics, even the space moves. This is the concept. In Vedic philosophy, the space, there are two types of spaces, two types of akash. One akash is just the void, vacuum, which is for every object, and another akash that is known as bhut akash for pancha mahabhutas, and that second akash
He says it has contents, it has mass, charge, it has, and your space, it has it has motion, it has curvature, it curves. But in our Vedic physics, that there are two types of akash. One is pure vacuum, and another is the akash that has the mass, charge, and all these contents. Okay. So here lies the difference. I mean, we differ from his ideas in Vedic physics or Vedic wisdom. We never say space moves. Yeah. It is misconception in physics. Uh-huh. Because if we consider space moves with respect to what? Mhm. So there we bring in Newtonian physics with respect to a parameter called time. But to understand space in physics, there are two or different type of definitions of space. One is called container. Space works like a container, like a pot containing water. So here the pot is the space. Yeah. And another one is a relational definition. So one point is space consists of many points, and there is one point is relative to another. So there is a definition called relational space. Here we don't need to think about matter itself. Space can exist independent of matter. In terms? Independent of matter. Okay, independent of matter. So maybe we need to understand more what Vedic or Vedic wisdom says about space, and we consider space in physics itself. आचार्य जी, प्रोफेसर शिशिर जी कह रहे हैं कि फिजिक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि स्पेस मूव करता है, ये रॉन्ग नोशन है लोगों की. और जो न्यूटोनियन फिजिक्स, समझा नहीं, फिजिक्स क्या? फिजिक्स के अंदर अब स्पेस में मोशन है ऐसा कंसेप्ट नहीं है. ये रॉन्ग नोशन है, लोगों की गलत धारणा है कि मॉडर्न फिजिक्स मानती है कि स्पेस में मोशन है. जॉन ग्रेविन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने पुस्तक लिया 10 क्वेश्चन टू द 10 इयर्स. उसमें बिग बैंग जो महाविस्फोट करते हैं उसमें स्पेस की स्पीड बताई है 10⁻28 किलोमीटर पर सेकंड. स्पेस स्वयं फैलता है. ये बिग बैंग थ्योरिस्ट स्पेस फैलना ही मानते हैं. इसको स्पेस का फैलना कहते हैं, यूनिवर्स का फैलना कहते हैं. उसमें स्पेस एक्सपेंड हो रहा है. No, I understand what you're saying, but I can tell you a fact which every student of science should obey it. What is that? I was that time a student, a PhD student. I was in Kolkata. Then I came to Bangalore, and because that time the great Indian physicist E.C. George Sudarshan, he invited me for a discussion. Then we had a very extensive discussions, and then he was telling me that you have started research. You should think the whole thing in the following way, that you have to understand yourself, not somebody said, not Buddha says, not Acharya says. This is the way we should think. Buddha himself told like that some sages told it. It is written in some scriptures, or no. You have to justify from your own conscience. So if somebody says today or tomorrow, no, space moves. Space moves. For how space moves? Movement means with respect to something. That something is time. So without considering the concept of time, how can we say space moves? Space doesn't move. Some entity moves through space. And that is respect to some parameter called time. This is the understanding in Newtonian physics. But in Einsteinian physics, it has a completely different notion that we can discuss if time permits. तो जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसमें स्पेस की मोशन का कंसेप्ट नहीं है. और शिशिर जी बता रहे हैं, जब ये कलकत्ता में पीएचडी कर रहे थे तो इंडिया के टॉप फिजिसिस्ट थे E.C. सुदर्शन. तो उनके साथ बातचीत हुई थी. उन्होंने
इन्हें बुलाया और बातचीत में कहा कि आप उस चीज पे विश्वास मत कीजिए जो लोग कहते हैं कि फला ने ये कहा, उसने कहा। आप जो समझ सकते हैं, आपको जो समझ में आया, आप उस पे विश्वास कीजिए। तो इस दृष्टि से आइंस्टीनियन फिजिक्स में स्पेस का कंसेप्ट अलग है। शिशिर जी कहते हैं उस पे अलग से बात की जा सकती है, परंतु जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसमें स्पेस में कोई मोशन की बात नहीं है। सृष्टि सबके लिए एक है, न्यूटन के लिए भी, आइंस्टीन के लिए, हमारे लिए और आपके लिए जी उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, मुझे पता है प्रोफेसर शिशिर राव बिग बैंग नहीं मानते और मैं भी नहीं मानता। स्पेस का एक्सपेंड होना आप भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता जी। लेकिन आइंस्टीन के लिए जनरल रिलेटिविटी, जी तो जनरल रिलेटिविटी में स्पेस कर्व होता है, जिसमें मोशन नहीं होगा वो कर्व हो ही नहीं सकता। उसमें कर्वेचर का अर्थ ही मोशन। मैं एक कागज को लेकर के कर्व करूंगा, इसका अर्थ इसमें मोशन नहीं होता तो कर्व हो ही नहीं सकता। तो मोशन तो ऑलरेडी सिद्ध होता है स्पेस में, आइंस्टीन से भी सिद्ध हो रहा है। और स्पेस एक सीट के समान मानते हैं, सीट के समान मानते हैं, और सीट जो है झुक जाती है तो वो भी कर्व होता है, वो भी मोशन है। और ग्रेविटेशन वेव स्वयं स्पेस में मोशन करती है, स्पेस वहां भी मोशन करता है, वाइब्रेट होता है। तो स्पेस में मोशन तो ऑलरेडी सिद्ध है। He says if there is curvature, curvature is एक also कंटेनर motion. की बात आई थी, एक कंटेनर की बात आई थी, तो कंटेनर सापेक्ष होता है। ये जो स्पेस जिसको हम मान रहे हैं कि मोशन नहीं है, वो ठीक है, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए वो कंटेनर है। लेकिन स्पेस के लिए कोई और कंटेनर, उसके लिए फिर कोई और कंटेनर है, सबसे अंत में कंटेनर तो प्रकृति पर ईश्वर है। तो कंटेनर भी सापेक्ष होता है। गैस का कंटेनर एक बाल्टी हो सकता है, एक डिब्बा हो सकता है, लेकिन डिब्बा का कंटेनर कोई और होगा। तो ये जो स्पेस कर्व होता है वो ठीक है, इसके लिए कंटेनर हो सकता है, सारे गैलेक्सियों के लिए उसके लिए कंटेनर हो सकता है। लेकिन स्पेस जो स्वयं कर्व हो रहा है वो किस में कर्व हो रहा है? अगर फैल रहा है तो किस में फैल रहा है? फैला हुआ था इसीलिए कर्व हुआ, जो फैला ही नहीं वो कर्व कैसे होगा? इसलिए मोशन तो है, वो No, किस में है? what you are saying, I understand. You don't need to translate it. Okay. Then, I mean, the next question which I am going to discuss, I thought that I would ask later on. Now, if you consider Mandala 10, Hymns of Creation, Naishthika Sukta. In Naishthika Sukta, it starts that in the beginning there is no space, no time, no causations. So the issue is, when the universe is being manifested, how space comes, how matter, how time comes, how motion comes. This is the questions which are haunting us. In the beginning, they said clearly there is nothing. I mean, nothing is not the word I should use, but no space, no time, no matter itself. So when you say there is motion, space is motion, space is not there. So how can you think of motion? ये शिशिर जी पूछ रहे हैं, नाषदीय सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि से पहले न तो स्पेस था न समय था। अगर स्पेस और समय था ही नहीं तो फिर मोशन कहाँ से आया? मोशन का कंसेप्ट कहाँ से आया? नहीं, मैं मॉडर्न फिजिक्स से जानना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या है, उसके बाद मैं आगे बात करूं। फर्स्ट स्टेप है क्या इनिशियल? ये ब्रह्मांड स्टेट इटर्नल है अथवा कभी बना है? अगर बना है तो चर्चा दूसरी तरह से होगी। बना है तो फर्स्ट मोशन कहाँ से आया, साइंस बताए, फिर हम बताएंगे कहाँ से आया। Okay. He wants to know the initial state of universe according to modern physics. I understand, but the issue is there are various schools in science regarding the creation of the universe, or even some school, they don't think the word creation should not be there. Okay, like steady state theory, like plasma cosmology, they think that there is no concept of creation at all. But especially in Big Bang cosmology, they consider that starting from
a kind of quantum vacuum where they say there is no concept of space, no concept of time, but because of the fluctuation, the universe is being manifested. Then space-time, everything is created. So that is their thoughts. And now, why I am referring Naishthika Sukta? Because we want to get some insights from Vedic wisdom. Whether in Vedic wisdom you have this kind of problem, which we think Rishi is described in Naishthika Sukta. But my knowledge is second and third knowledge. I cannot read Sanskrit originating in Vedas and decipher it. You are the people who can decipher it and enlighten us. That way we can get some insights, because there is a lot of debate is going on. So if you ask me what are at the beginning, we have different schools. ये कहते हैं अगर ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें इनिशियल स्टेट यूनिवर्स की जाने तो उसमें अनेक स्कूल हैं। कोई स्कूल कुछ कहता है, कोई स्कूल कुछ कहता है, स्टेडी स्टेट थियरी है, प्लाज्मा कॉस्मोलॉजी है, वो तो कहते हैं कि क्रिएशन है ही नहीं। तो ये जो क्रिएशन का कंसेप्ट है ये बिग बैंग थियरी में आता है और वहां से स्पेस टाइम का आरंभ है। तो ये कहते हैं कि वहां तो ऑलरेडी कंफ्यूजन है इस सिस्टम में। तो नासदीय सूक्त की इनसाइट से हम जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ का जो नॉलेज है वो सेकंड हैंड है, सेकेंडरी सोर्सेज से है। और जो इनका नॉलेज है नासदीय सूक्त को जब पढ़ते हैं शिशिर जी, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज से आता है। कहते हैं आप लोग तो डायरेक्ट वेद को पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज तो प्राइमरी सोर्स से है। तो आपके अनुसार नासदीय सूक्त का में क्या है, उस इनसाइट को ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वहां तो मॉडर्न में तो ऑलरेडी इस पे कोई सहमति नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हाँ, वास्तव में मॉडर्न साइंस के जितने भी थ्योरी है वो सभी एक दूसरे को काटती, और ऐसी थ्योरी हो ही नहीं सकती जो एक दूसरे को काटे। कोई एक थ्योरी नहीं है, वो सही बात है प्रोफेसर सिसिर रॉय जी की। जी, मैं नास्तिक सूक्त की बात नहीं करूंगा, लेकिन विशाल आर्य की जो पुस्तक है उसमें पूरा दिया है कि सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या होती है। इनिशियल स्टेट में मैं केवल जड़ पदार्थ की बात करूं, लेकिन साथ में ईश्वर भी आएगा। लेकिन प्रकृति जिसके लिए कहा कि चार्ज नहीं, मास नहीं, मोशन नहीं, स्पेस नहीं, टाइम नहीं, इसका अर्थ क्या पहले ये समझना है। एक जो स्पेस आकाश जिसको एम्प्टीनेस कहा वो तो सदा रहता है, क्योंकि अभाव वो तो अभाव रूप है, वो तो सदा रहता है, उसका कोई विनाश नहीं होता, कभी उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन जो स्पेस पंच महाभूत वाला है जिसको डिस्टॉर्शन या जो भी आज साइंस मानता है, वो स्पेस तो पैदा होता है बहुत बाद में। अब ऐसा पदार्थ आज चाहे कोई सा एलिमेंट्री पार्टिकल ले ले, वो फंडामेंटल नहीं है। अब हम विचार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल, पॉजिट्रॉन फंडामेंटल, क्वार्क फंडामेंटल है। क्वार्क में भी 6 सब अलग अलग फंडामेंटल है। इन फोटोन भी फंडामेंटल है, एंटी न्यूट्रॉन फंडामेंटल, क्वार्क फंडामेंटल, एंटी क्वार्क भी फंडामेंटल। अब ये सभी फंडामेंटल, अगर हम ये जानना चाहें कि फंडामेंटल्स में अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस जब भी हो सकता है जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग हो। नमक का और शुगर में डिफरेंस क्या है, ये जब ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में अंतर है। अगर इनके डिफरेंस में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसका अर्थ है कि इनका कोई स्ट्रक्चर है, इसके कंटेंट है। अगर कंटेंट नहीं है तो ये इंटरनल हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक पार्टिकल जिसको एलिमेंट ही कहा जाता है वो वास्तव में एलिमेंट है ही नहीं, उसके कंटेंट है, और ये विस्तार से विशाल आर्य ने बताया। अब ये जिनसे बने, स्ट्रिंग फॉरेस्ट कहते हैं कि स्ट्रिंग से बने। अब स्ट्रिंग के बारे में भी अभी कोई निश्चित धारणा फिजिसिस्ट में नहीं है। फिर मैं पूछा क्या स्ट्रिंग इटर्नल है, उसका भी नहीं है। तो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा द्रव्य जिससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं हो,
जिसमें कहीं भेद नहीं हो, जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो, जिसमें कोई मोशन नहीं हो, जिसके कोई प्रॉपर्टी एक्टिव नहीं हो, वही पदार्थ से सूक्ष्म हो नहीं सकता हो, वही पदार्थ इटर्नल हो सकता है, उसका नाम है प्रकृति। और इस पुस्तक में उसके 30 नाम दिए। महर्षि ब्रह्मा जी ने और महादेव जी ने 30 नाम दिए महाभारत में है, और उस 30 नाम बताते हैं कि इटर्नल क्या है। जो स्पेस एम्प्टीनेस है वो कभी नहीं बनता, उसमें सब रहता है, लेकिन जो स्पेस वर्तमान में जिसको मानते हैं वो कई स्टेज बाद पैदा होता है। अब रही टाइम की बात, जिसका टाइम कहते हैं। अगर टाइम क्या है ये विचार करें तो टाइम टाइम नापते हैं 1 घंटा। 1 घंटे को तो टाइम नहीं कहते। जैसे 1 मीटर को स्पेस नहीं कह सकते, वैसे 1 घंटे को टाइम नहीं कह सकते। 1 किलोग्राम सोना है तो 1 किलोग्राम कोई पदार्थ नहीं है जिसको तोला जा रहा है, वो 1 किलोग्राम उसको नाप रहे हैं। अपन 1 घंटे में किसको नाप रहे हैं? टाइम कुछ और चीज है जिसको हमारे यहाँ काल कहा। एक काल अव्यक्त रूप में इटर्नल है, लेकिन व्यक्त रूप में जब वो प्रकट होता है उसको हमारे वो फर्स्ट फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन, ओम, जिसको हमने ओम माना, मैंने नहीं माना, ऋषियों ने माना। सबसे पहला उस पदार्थ में जो वाइब्रेशन होता है, बिना वाइब्रेशन के कोई भी पदार्थ विकृत होकर के दूसरे पदार्थ की रचना नहीं कर सकता। जो पहला वाइब्रेशन है वही ओम है, ओम रश्मि जिसको नाम दिया। तो पहला पदार्थ द्रव्य जिसमें मास नहीं है, मास नाम का प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, मोशन नाम का प्रॉपर्टी या क्रिया नहीं है, वह पदार्थ इटर्नल है, उसका नाम है प्रकृति, नेचर नहीं। नेचर अंग्रेजी में किसको कहेंगे अलग बात, लेकिन प्रकृति जिसके 3 गुण है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, वह पदार्थ इटर्नल है। उस समय ये स्पेस नहीं है, उस समय ये टाइम अव्यक्त टाइम नहीं था, काल। मैं टाइम नहीं कहूंगा, टाइम का अर्थ क्या होता है मैं नहीं जानता, काल का अर्थ, जो काल की बात कर। और उसमें कोई मास की प्रॉपर्टी नहीं है, उस समय कोई साउंड नहीं है, उस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अगर एक्टिविटी है तो वो इटर्नल नहीं हो सकती, कोई भी एक्टिविटी इटर्नल नहीं होगी। ये पदार्थ पूरी तरह शांत सोया हुआ था, सोया हुआ जैसा वह पदार्थ इटर्नल कहलाता है। साइंस में इस पदार्थ का कोई नाम नहीं है, साइंस वहां तक पहुंचा, फोटोन पर समाप्त हो जाता है। साइंस स्पेस के बारे में कुछ जानता नहीं विशेष, जाने तो उसके आगे साइंस को कुछ पता है। प्रकृति को मॉडर्न फिजिक्स में क्या कहेंगे इसको हम कह ही नहीं सकते, क्यों वहां तक साइंस की पहुंच नहीं, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते वर्तमान फिजिक्स के आधार पर। Okay, I understand what he's saying. But there are 2 issues, very, very important issues, which is not discussed in Vishal Arya's book. One thing, in the beginning, there was eternal, permanent, unchanging. So from that, how the Jagat means Gamdhatu, which is moving. So how from unchanging thing to changing appears. What is the missing link between the two? First one. Second one, in 21st century, there is a very challenging aspect which is not discussed here, that is called Planck scale physics and its challenge. What is that? Planck scale physics says that with the help of fundamental constant like speed of light, Planck constant, and gravitational constant, you can build up some length scale 10 to the power minus 33 centimeter, which we cannot perceive in our brain. 10 to the power 1 by 10 to the power 33. It's unthinkable in our human brain. So that is the smallest length scale called Planck scale. And correspondingly, there is time scale 10 to the power minus 43 second, which is called Planck time. So what is the significance of this? Significance is that below this Planck scale of length, Planck scale of time, there is no concept of space, no concept of time, no concept of causality. So the issue is, in everyday world, we have space, time, continuum, and causality. So how from substratum, which doesn't have concept of space,
time and causation, we are having concept of space, time, continuum, and causation. This is one of the biggest challenge in 21st century physics. And we think maybe you people or our sages talked about this even in the Rig Veda. What we feel like that. That's why we are asking you whether you can enlighten us from these aspects. These are pertinent questions. I know in Vedic wisdom, many things are discussed. But science, modern science is how much? 300 years or 400 years old. So we cannot say that science knows everything. And even the fundamental entities, fundamental particles, you say, the scientist's dream is that whether we can find a single elementary entity by which we can build up the whole universe. That is fundamental entity. And the concept of structure, people should not use in case of elementary entity. In physics, we never use structure of electron, structure of photon. No, some attributes. Because as you say that in scriptures, they have different meanings. So we have also developed a kind of language where we don't use concept of structure itself. Structure of atom is all right. Structure of molecule is all right. But we don't say structure of the electron. आचार्य जी, हाँ जी, शिशिर जी कहते हैं कि वो जो विशाल आर्य की पुस्तक है उसमें दो इश्यूज को डिस्कस नहीं किया गया है। आप समझे, एक तो एटर्नल और जो परमानेंट और अनचेंजेबल है, उससे ये सारा जो चेंजेबल और ये सब कैसे मैनिफेस्ट हुआ, उत्पन्न हुआ। हाँ ठीक है। और दूसरे ये कहते हैं कि जो टाइम स्केल है, जैसे प्लैंक का टाइम स्केल है वो -43 सेकंड है, और ऐसे ही स्पेस का स्केल है। उस अगर इस टाइम स्केल से -43 सेकंड से जो नीचे है, न तो वहां कॉजैलिटी है और न वहां कोई मतलब वो नहीं है कुछ भी, तो इसको ये समझना चाहते हैं कि भी ये सब कैसे बना। और दूसरे जो आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह में स्ट्रक्चर की बात नहीं है, वहां केवल एट्रीब्यूट्स की बात है, स्ट्रक्चर तो एटम्स में हो सकता है। और जो ये आधुनिक विज्ञान है ये तो 100 साल पुराना है, बहुत बड़ा पुराना नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आधुनिक विज्ञान ने सब कुछ ढूंढ लिया है। परंतु जो वैदिक सीयर है, जो वैदिक ऋषि हैं, उनके यहाँ हमारे यहाँ बहुत चीजें डिस्कस हुई है, और यहाँ से हम कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो लिंक है इनको हम कैसे उसको कर सकें। हाँ, पहली बात, विशाल आर्य की पुस्तक 216 पृष्ठ है और मेरा वेदिक का 2800 पृष्ठ का है। 28 भी एक साइज से भी बड़े साइज के पृष्ठ है। तो आप ही सोचे 2800 पृष्ठ में से कोई 216 लिखेगा तो कितना लिखेगा? जी जी। और मेरा जो 2800 पृष्ठ है वो भी बहुत, क्या कहना चाहिए, उसको भी मैं अगर व्याख्या एक्सप्लेन करके लिखता तो 10,000 पृष्ठ का होता। वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, वैदिक रश्मि थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। इसलिए विशाल आर्य की पुस्तक में वो है पूरा एक्सप्लेन नहीं है, ये तो बात है, वो भी नहीं सकता। लेकिन तो यहाँ ये दो इश्यू को पहुंचा है। और दूसरी बात बता रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन क्या, हाँ, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर फिजिक्स के पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन फोटोन का, लेकिन वो स्ट्रक्चर हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन का, क्वार्क का, एक वेव पार्टिकल जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है, उनका मोटा स्ट्रक्चर हमारे पास, और फोटोन का अलग से हमारे पास। अब रही बात ये सब कैसे बना, ये बीएच में मैंने 2 घंटे में प्रस्तुत किया था, कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे लेक्चर 2 घंटे का था, तो इतनी जल्दी तो ये नहीं बताया जा सकता। पर संक्षेप है कि जो प्रकृति रूपी अवस्था पूरी तरह शांत, जिसमें कोई एक्टिव नहीं है, जहां मैक्स का प्लैंक लेंथ वो छोड़िए, उसमें कोई भी नियम शुरू नहीं।
आपकी आवाज कट रही है आचार्य जी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा, थोड़ा। फिजिक्स के लॉ शुरू होते हैं जब पहली बात तो जड़ पदार्थ में अपने आप कोई गति नहीं होती। पहली बात, न्यूटन और फिजिक्स कहती है कि कोई भी पदार्थ अपने आप अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता, इसके लिए कोई बाहर की एजेंसी चाहिए। वो एजेंसी जड़ के अतिरिक्त होगी, वो चेतन होगी, उसको ईश्वर नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। बिना चेतना के मोशन हो ही नहीं सकती, और मोशन के बिना सृष्टि का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। वह मोशन होती है सबसे पहले सबसे सूक्ष्म वाइब्रेशन, और ध्वनि तरंगों के अतिरिक्त कोई वाइब्रेशन हो नहीं सकता। लेकिन ध्वनि में प्रोफेसर शिशिर रॉय प्रश्न उठाएंगे कि ध्वनि तो वहां होगी नहीं, ध्वनि तो सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी, इसके बाद ध्वनि नहीं सुनाई देती। जिस ध्वनि की सेंस करता है तो असल में ध्वनि बैटरी रूप है। बैटरी के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस मीडियम चाहिए। इसके आगे की ध्वनि है मध्यमा, इसके लिए मीडियम स्पेस चाहिए, रेडियम वेव आदि। इसके अगली ध्वनि है पश्चंती, इसके लिए स्पेस की भी जरूरत नहीं है कि मॉडर्न स्पेस है या आकाश भावुत है। उसके लिए मनस्तत्व चाहिए जो समष्टि मन है, सब जगह फैला है। और पराध्वनि के लिए मनस्तत्व का मीडियम भी नहीं चाहिए, उसके लिए केवल मीडियम चाहिए प्रकृति। तो सबसे पहले परा ओम ध्वनि इसलिए कह रहा हूं, वास्तव में हमारे वाणी शब्द है उसके लिए। तो परा वाणी होता है ओम का, और ईश्वर द्वारा ही होता है, इसलिए ईश्वर को मुख्य नाम भी है, और ईश्वर द्वारा ही मोशन होता है। लेकिन ईश्वर की परिभाषा भी समझ लेनी चाहिए। वो ईश्वर किसी संप्रदाय का ईश्वर नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। एक ऐसी चेतन शक्ति जो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसी एक शक्ति का नाम ईश्वर है, और उसके अतिरिक्त कोई वाइब्रेट नहीं कर सकता। प्रकृति में वाइब्रेशन नहीं हो सकता, और वाइब्रेशन होते ही उसके दो गुण प्रकट होते हैं, सत्व और रज। सबसे पहले उस स्थिति का नाम है काल। ओम रश्मि, परा ओम रश्मि जो वाइब्रेट किया और सत्व रज दो गुण प्रकृति में एक्टिव हुए, उसका नाम है काल। फिर वो काल उस अन्य प्रकृति को एक्टिवेट करता है और तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं। उस अवस्था का नाम है महत, और महत का ही अपर रूप। उसकी भी एक्साइट स्टेट माने अहंकार, उसकी एक्साइट स्टेट माने मनस्तत्व। मनस्तत्व में फिर पश्चंती ओम रश्मि मनस्तत्व को वाइब्रेट करती है, तो फिर आगे भू भुव स्व और फिर सारी छंद रश्मियां जिनको वैदिक रश्मि कहते हैं वो उत्पन्न होती है। इन वाइब्रेशन से फिर स्पेस बनता है। स्पेस की एक एक यूनिट में रश्मियां हैं, उनसे उन रश्मियों से एक यूनिट बनती है, और सारी यूनिट मिलकर के जाल जैसा स्पेस होता है। फिर उसके बाद कंडेंसेशन की प्रक्रिया आगे चलती है, तो फोटोन बनता है, एलिमेंट्री पार्टिकल बनते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जहां फिजिक्स समाप्त होता है वहां हमारा वैदिक रश्मि थ्योरी प्रारंभ होती है। डार्क मैटर भी, डार्क एनर्जी भी सब उसी से बनते हैं। सब दोनों का कारण वही मनस्तत्व है। 2800 पेज की पुस्तक में दिया हुआ है, मैं इतनी जल्दी नहीं समझा सकता। Okay, I understand what you are saying. हाँ, प्रत्येक मंत्र क्या काम करता है, उसका देवता काम करता है, उसकी काम करते पूरा विस्तार से उसी में मिलेगा। अभी का भी भाष्य क्या वो उसमें और भी ज्यादा विस्तार आ जाएगा। तो विस्तृत थ्योरी है। रश्मि सब कुछ रश्मियों का जाल है, सब कुछ वाइब्रेशन है, और रश्मि नाम इसलिए दिया इसको, नृत्य करता है। रश्मि यमना, रश्मि अपने जैसी रश्मि अपने स्थूल रश्मि को पैदा भी करते हैं, उसको नियंत्रित भी करते हुए कहलाती है रश्मि।
इसको तरंग नहीं कह सकते, ये वेव नहीं, रश्मि रश्मि है, रश्मि है, साइंस में कोई शब्द नहीं। Okay, let us start with step by step. First thing, when you talk about vibration, there is a long debate among scientific community when you say even the fluctuation in the quantum vacuum. So what is meant by vacuum, a fluctuation or vibration? Because there is no physical medium there. Now, this issue of vibration, as you told in Om, afterwards, in Kashmiri Shaivism, there is a text called Spankarika. And Shankaracharya, he talked about this vibration also and said this is a logical construct. Now, his guru, Gaudapada, he took a middle position between Abhinavagupta, who is from Kashmiri Shaivism, and their Spankarika, and this Shankaracharya. So even Gaudapada used the term spand, but the issue is in science when you say spand or vibration, without medium, how can you think of the spand or vibration? This is number one. It's very difficult to conceive. Second one, you have, I don't know whether in Vedic wisdom it is there in Akasha. We have published a book called Demystifying the Akasha from USA. So there we told that space and geometry are different. People should try to understand. In the space, a space can be defined as a set of points, discrete points. And we can say how far this point, how far or how near this point, this kind of property you can study. But in geometry, they have a very definite property, like concept of distance, like concept of triangle. So in Akasha, there may be space where the points are discrete, but there might, when Vivekananda said that when prana hits Akasha, then everything starts. So maybe vibration is there, and out of that vibration, the discrete points, they give rise to geometry. Geometry like Euclidean, non-Euclidean, what we use in physical world. So we have to differentiate space and geometry. And we want, because we have built up the model, which is published in the book, Demystifying Akasha, and other scientific journals too. So our inquiry is whether in Vedic wisdom, because I read one Upanishad where they discussed about this kind of discrete points and the continuum or the geometry. So in Vedic wisdom, can you enlighten me or ask all the people here that they have also differentiated what we call space is a kind of set of points, set of discrete points, and the geometry which we use in case of modern physics. There are a lot of difference. It's not my statement. It's mathematically very rigorous way we can define it. So if you can enlighten, because Spando is elaborated in many texts in scriptures. So we were stuck there. What is meant by Spando without a physical medium? आचार्य जी, शिशिर जी कहते हैं कि जो कश्मीरी शैविज्म है उसमें भी कश्मीरी शैविज्म, कश्मीर का जो शैविज्म है उसमें भी स्पंद का विधान है, एक स्पंदकारिका पुस्तक भी है। परंतु ये पूछना चाहते हैं जो वाइब्रेशन है या जो स्पंद है वो बिना किसी मीडियम के कैसे रह सकता है, कैसे हो सकता है? उसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है, बिना मीडियम स्पंद नहीं हो सकता है। तो दूसरे जो स्पेस और जियोमेट्री, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है डीमिस्टिफाइंग आकाश, आकाश के रहस्य का उद्घाटन। तो उसमें ये स्पेस और जियोमेट्री की बात की है। जो स्पेस है वो एक सेट है, डिफरेंट जो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं उनका एक सेट है स्पेस, और जो जियोमेट्री है ना उसमें डिस्टेंस वगैरह, जो ट्राइंगल वगैरह है वो सब जियोमेट्री का विषय है। तो ये जानना चाहते हैं कि जो
तरंग है, जो आप जिसको वाइब्रेशन या कह रहे हैं, वो बिना मीडियम के कैसे आएगा? उसके लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि आकाश दो प्रकार का, एक तो एम्प्टीनेस, वो मीडियम है, और प्रकृति का भी एक मीडियम होता है। प्रकृति का जो कंटेनर है वो ईश्वर है, जो चेतन तत्व। प्रकृति का आधार भी चेतन है, ईश्वर। तो प्रकृति में जो वाइब्रेशन होगा, तो एम्प्टीनेस में ही प्रकृति स्थित है, उस आकाश, अवकाश रूप आकाश में, ये स्पेस में नहीं, उस आकाश में। जब और ईश्वर में प्रकृति है, और उसके बाद जब वाइब्रेशन महत्व में होगा तो उसका मीडियम प्रकृति है। जब वाइब्रेशन अहंकार में होगा तो उसका मीडियम महत्व है। जब वाइब्रेशन मनस तत्व में होगा उसका मीडियम अहंकार है। और जब वाइब्रेशन इस स्पेस में, जब वाइब्रेशन प्राण, उसके आगे आएगा प्राण, छंद, उनमें वाइब्रेशन होगा, उसका मीडियम है मन। और जब इनमें वाइब्रेशन स्पेस में, जो वर्तमान स्पेस, इसमें वाइब्रेशन होगा तो वो प्राण तत्व, छंद तत्व में वो मीडियम होगा। तो मीडियम भी सापेक्ष है। शिशिर जी, could you get the point? सबसे पहला मीडियम प्रकृति। No, we are now. I am stuck again. When you say Prakriti, in terms of modern science, can you explain more? For Prakriti, the Ishwara is the medium, and this vacuum is the medium for everything. And he says there is a medium in medium, means there is a chain. If from Prakriti, when the Mahat Tattva dwells, the medium for Mahat Tattva is the Prakriti. And from Mahat Tattva, this Ahankara dwells. So medium for the development of Ahankara, that is Mahat Tattva. So there is a chain. One is medium and another is the evolute. The same becomes medium for the succeeding elements. He wants to say that. So we are stuck when you say Mahat Tattva or Lishkan Tattva and medium. Yeah. Can you identify this with any physical medium in this universe? आचार्य जी, ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने महत तत्व वगैरह का नाम लिया, तो क्या महत तत्व को आप जो फिजिकल यूनिवर्स है उसमें किसी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस ब्रह्मांड में ये महत तत्व है? ऐसा कुछ आप इंगित कर सकते हैं? क्योंकि उसको जानने के लिए ये आवश्यक है। साइंस के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो फोटोन को भी जान ले। तो मैं मनस तत्व को कैसे जानेगी, प्राण तत्व को कैसे जानेगी? कभी नहीं जानेगी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विषय ही नहीं है, ये ध्यान और समाधि का विषय है। There is a concept मूर्त and अमूर्त. So ये जो concept है, these are अमूर्त है, means they cannot be known. These concepts cannot be known with the tools of modern science. So this is, we say this is beyond science. Beyond science, yeah. So if it is beyond science, I mean, then it is becoming difficult for us if it is beyond science. Yes. So now, whether there is a methodology by which people have a cognition to know that it is beyond science, something exists. How do they know it? With the help of meditation, or that is also subjective experience. तो आचार्य जी, जो बियॉन्ड साइंस है उसके लिए भी कोई मेथोडोलॉजी है कि भाई जो बियॉन्ड साइंस है उसको हम कैसे जाने? जैसे मेडिटेशन वगैरह के लिए तो उसका क्या सिस्टम है? क्योंकि मेथोडोलॉजी तो बियॉन्ड साइंस को भी जानने की रहेगी, क्योंकि योगी तो और सिद्ध पुरुष तो सब जानते हैं, तो वो क्या उसका प्रक्रिया रहेगी, प्रोसेस या मेथोडोलॉजी क्या है? देखिए, जानने के जितने भी आयाम है, जितने आयाम होंगे उतना ही ज्ञान ज्यादा परिपक्व होगा। जैसे एक आदमी है, वो देख भी नहीं सकता, सुन भी सकता, छू भी नहीं सकता, लेकिन गंध और स्वाद जानता है। उसको बहुत कम नॉलेज होगा सृष्टि का। लेकिन एक आदमी देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन छू सकता है, और गंध और स्वाद
भी ले सकता है, वो उससे ज्यादा जानेगा, उससे थोड़ा ज्यादा जानेगा। लेकिन एक आदमी देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, छू सकता है, चख सकता है, सूंघ सकता है, वो उससे भी अधिक ज्यादा जान लेगा। और एक आदमी देख भी सकता है, सुन भी सकता है, सूंघ भी सकता है, चख भी सकता है, स्पर्श भी कर सकता है, वो उससे भी ज्यादा जानेगा। आज साइंस केवल 3 आयामों से काम कर रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी केवल आंख के द्वारा काम कर रही है, कान के द्वारा काम कर रही है, नाक के द्वारा काम कर रही है, स्पर्श के द्वारा काम कर रही है। इसके आगे समाधि में जाकर के जानता, मेडिटेशन के द्वारा जानता, वो चौथा आयाम और जुड़ गया, तो भी ज्यादा जानी है। इसी आयाम से ऋषियों ने जाना, सारा योग दर्शन इसी का है। तो इससे उन्होंने ऋषियों ने जो समाधि अवस्था में जो ग्रंथ लिखे, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसके मैंने भाष्य देखे, निरुक्त के लगभग 10 भाष्य देखे, मैं किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। अब मैं प्रोफेसर रवि प्रकाश जी में निरुक्त की बात करूं तो सारे भाष्य मैंने उठा के रख दिए, बहुत सारे थे। मुझे लगा कि एक भी भाष्य वेद की गरिमा से बिल्कुल न्याय नहीं कर रहा है, वेद मंत्रों का जो व्याख्या है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने अपने भाष्य के, वो जब प्रकाशन में आ जाएगा 1-1.5 साल में, तो आप देखेंगे। तो मैंने ऋषियों के द्वारा, ऋषियों ने जो समाधि से जाना, ऋषियों ने जो वेदों से जाना, उसको मैंने भी ध्यान से जाना, और उस बात की व्याख्या मैंने बहुत आगे जाकर की, बहुत आगे जाकर। अब जो प्योर साइंस की बात है, प्योर साइंस की बात मैंने वहां तक की है कि साइंस की, जैसे जनरल रिलेटिविटी में बात करूं, मैंने किप थॉर्न से, और ये नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में, तो मैंने प्रश्न उठाए थे स्पेस का। एक प्रश्न में था कि मास, कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस को कर्व करता है, ऐसा क्यों होता है? एक चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, या रिफ्लेक्ट या रिपल करता है। अगर चार्ज पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल को कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, मास वाला मैसिव ऑब्जेक्ट कोई इंटरेक्ट करेगा, तो स्पेस को इंटरेक्ट कैसे करा मास मैसिव ऑब्जेक्ट? फाइनमैन ने लिखा है, रिचर्ड पी फाइनमैन ने, कि पॉजिटिव चार्ज भी एक ऐसी कंडीशन पैदा करता है, स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है, नेगेटिव चार्ज की ओर आकृष्ट होता है। इसका अर्थ चार्ज भी स्पेस को इंटरेक्ट करता है। इसका अर्थ क्या है? चार्ज बिना चार्ज वाले को नहीं करता, तो स्पेस को क्यों करता है? मास बिना मास वाले को नहीं करता, तो स्पेस को क्यों करता है? इसका अर्थ मास चार्ज दोनों ही स्पेस में है। ये कर्वेचर का साइंस, जनरल रिलेटिविटी को फिजिक्स नहीं समझा सकता, लेकिन हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी समझा सकती है। क्यों? हम स्पेस का स्ट्रक्चर मानते हैं, उसके कंटेंट बताते हैं, तब ये जनरल रिलेटिविटी समझ में आएगी। कॉम्पटन इफेक्ट, एक फोटोन ने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, किसी को एनर्जी दे दी, वो क्या दिया, उसने क्या ट्रांसफर किया फोटोन में से, इसको फिजिक्स नहीं समझा सकता, हम समझाएंगे। क्योंकि फोटोन में कंटेंट्स हैं, 360 प्रकार के वाइब्रेशन, प्रकार के कह रहा हूं, 360 वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा, 360 प्रकार के। वो कौन से वाइब्रेशन देता है इलेक्ट्रॉन को, तब कॉम्पटन इफेक्ट दिखाई देता है, ये हम समझाएंगे। तो ये प्योर साइंस है, टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है। इसके लिए ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने होंगे, वेद पढ़ने होंगे। मैंने नहीं कह सकता किस भाषा को पढ़े, लेकिन आप वेद विज्ञान आलोक को पढ़ेंगे। पर समस्या है, प्रोफेसर सिसिर रॉय हिंदी नहीं जानते, और वेद विज्ञान आलोक को हिंदी जानने वाला भी नहीं समझ सकता। उसका साइंटिफिक, उसके पास एक प्रतिभा हो, और हिंदी उसकी अच्छी हो, संस्कृत हो, तो वो समझ लेगा उसको। तो इतनी बड़ा 2800 पृष्ठ का सारा एक थोड़ी देर में उसको हम नहीं बता सकते हैं, बहुत बड़ा है। No, I agree. But again, the similar questions we can throw to the Vedic scholars. You don't know how do you know modern science so in details? Because we need kind of training which you don't have, and we have developed the training. Yeah. We have developed language. Yeah. So without, how can you understand the science in that deeper way? We have the similar question, and that should not be the way we should
ये प्रोफेसर शिशिर रॉय कहते हैं कि ये हम भी आपको प्रश्न कर सकते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वैदिक विज्ञान को उसी प्रतिभा से और उस ज्ञान से और उतने लेवल पे समझा जा सकता है, तो जो वैदिक विज्ञान का व्यक्ति है वो बगैर ट्रेनिंग के, पर्टिकुलर ट्रेनिंग के, जो फिजिकल साइंस है वो भी उसको कैसे जान सकता है? तो वहां तो आपकी भी बाध्यता है, जिस प्रकार से शिशिर रॉय की बाध्यता वेद विज्ञान आलोक को पढ़ने में है, उसी प्रकार से आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक की भी उनकी भी बाध्यता है जो मॉडर्न फिजिक्स के सही स्वरूप को जानने की। इसलिए हो सकता है कि कहीं वहां पर गड़बड़, आलोचना ज्यादा करते रहे, कम समझ में आएगा, इसलिए आलोचना ज्यादा हो सकती है। No, I do agree. इसका मॉडर्न फिजिक्स को जानने के लिए मैंने बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास है, बहुत पढ़ी, और BARC मुंबई में 2004 से बराबर बहुत जाता रहा और मॉडर्न फिजिक्स की चर्चा करता रहा। हाँ, ऐसे नहीं मान लिया है मैंने, ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करता। मॉडर्न फिजिक्स को समझ करके, उनकी समस्याओं को देख करके और वैदिक साइंस को समझा है, और हम तो आपके सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं, हम तो सहयोगी बनते हैं। No. Question is not that. Issue is that there are some subtle points. Oh, just a minute. Who is this? Yeah. Somebody, I don't know, doing some problem. Let me see. Atul Segal, I think. Yeah, he has gone. I think he was trying to display something. Yeah, continue. Okay. So the issue is not that. Issue is that there are some subtle points, subtle issues in modern physics. And those issues, people need special type of training or many years, just like to learn Sanskrit, to understand Vedas, or practicing meditation. So that kind of training is needed for both the people in this era. Not that when the rishis did it, there was no specific division between physics, chemistry, or philosophy. There is no such thing. But now, after certain time, it has been divided. It has been specified in various branches. So we are specialized in particular aspect. So that's why we need. According to my opinion, we need a close discussions regarding the various concepts used in Vedic wisdom as well as in modern science. I'm not saying you are not capable, but you are capable. But you need a kind of very close discussions. वो कहते हैं कि कुछ मॉडर्न साइंस में भी कुछ बहुत ज्यादा सूक्ष्म विषय हैं जिनमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो ये नहीं कहते कि आप नहीं जानते हैं, परंतु वहां भी एक स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वैदिक काल में तो कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं था, क्योंकि सबको एक होल उसमें सिस्टम में पढ़ा गया, चाहे केमिस्ट्री था चाहे फिजिक्स था, एक उस पूरे स्वरूप में उसको पढ़ाया गया। परंतु अब स्पेशलाइजेशन आ गया है, तो वहां जो सूक्ष्म बातें हैं उनके लिए कुछ न कुछ ट्रेनिंग की और उसकी आवश्यकता रहती है, वो उनका ये अभिप्राय है। सुशीर जी, आई थिंक Acharya Agnivrata Naishthik, he told, if a massive object is interacting with another massive object, this is a law, and some charged object is interacting with the charge. So when these things, they are interacting with the space, he says, then the space has also mass and the charge. Is it so? No, in physics we don't think that way. Yeah, but he says in Vedic physics, the space also has the mass and the charge. That is why these all elements, they are reacting, they are interacting with the space also. No, there is the difference. We don't have we need to, understand maybe Vedic physics in a more deeper way. Yeah, and Acharya Agnivrata also says that we are ready to cooperate with you, to collaborate with you. Thank you. We need it. Otherwise, it's not. No, yes. If we will have to reach some truth, then certainly this collaboration has to be there. Yeah. And I would also be interested in this matter. Thank you. So, any other question, Professor Sisir ji, you want to raise? Yeah, one very elementary question. Like in Vedic wisdom or in
any kind of Indian philosophy, they use the term subtle matter and gross matter. Subtle and gross. Yes, yes. So, but in modern physics, we don't have this kind of distinction, subtle matter and gross matter. Right. So, if I mean, Acharya ji can explain what they exactly mean by subtle and gross matter, and whether they have corresponding some kind of speculation at least that can be taught in modern science also. आचार्य जी, शिशिर जी कह रहे हैं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है या मॉडर्न साइंस है, उसमें जैसे हम कहते हैं ना, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत का हमारे यहाँ कंसेप्ट है, परंतु मॉडर्न साइंस में ये कंसेप्ट नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है स्थूल और सूक्ष्म का, तो इसका कुछ पर्टिकुलर वो डिस्टिंक्शन है आपके पास, हमारे पास, कि हम क्या इसका उसको एक दूसरे से हम अलग करें कि क्या सूक्ष्म लेवल है, क्या स्थूल है, क्योंकि ऐसा कुछ मॉडर्न साइंस में तो नहीं है, ये हमारे ही यहाँ है। मॉडर्न साइंस में भी, मॉडर्न साइंस में भी मैक्रो लेवल पर अलग नियम काम करते हैं, न्यूटन फिजिक्स काम करते हैं, माइक्रो लेवल पर क्वांटम फिजिक्स काम करती है, उसके नीचे फिर और फिजिक्स आ जाएगी, स्ट्रिंग थ्योरी काम करती है। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी है, और ये भी रिलेटिव है। We don't do that. We say layers of reality, labels of reality. We don't say gross and subtle, because that is also, there is no such difference. Even let me say that when we say that quantum mechanics describes the behavior of the microscopic entity, this is the usual understanding. But now scientists trying to, or they have developed even the quantum mechanics for the description of the macro object, like superconductivity, like liquid helium, which is tons and tons of object. But to understand their behavior, this is experimentally verified, we need quantum mechanics. So with that, we cannot say this is gross level, this is subtle level. Of course, I don't understand exactly what will be gross and what will be subtle in modern science. Yeah. तो ये कहते हैं कि ये लेवल्स हैं, माइक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल है, परंतु हमारे यहाँ तो जो सूक्ष्म भूत है, ये स्थूल है, ये तन्मात्रा है, ये जो है, ये क्या है? ये भी लेवल। He says these are also the levels, just like micro and macro levels in modern science. No, we had to understand. We don't understand when they say. इसे हमें समझ में नहीं आता, जब ये कहा जाता है तो ये आप समझाइए ये कैसे लेवल है, क्या है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में तो वो सब है। अभी यहाँ पर ये सुपर कंडक्टिविटी है, ये है, वो है, वहां तो सब समझ के उन्होंने कर लिया है, परंतु इस लेवल पे हमें समझ नहीं है इसका। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि डिफरेंट साइंस है ना। जैसे अब मॉलिक्यूल में जाएंगे, मॉलिक्यूल से आगे जाएंगे, एटम आएंगे, एटम से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आएंगे, उससे भी आगे जाएंगे तो क्वार्क आएंगे। यहाँ तक तो साइंस समझेगा, क्योंकि ये पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, परंतु हमारे हम कैसे समझाएं अपना ये तन्मात्रा और जो भूत है, महाभूत का कंसेप्ट है, वो कैसे समझा इसलिए जाएगा। ये फिजिक्स अपने आप से पूछेगा कि क्वार्क और एंटी क्वार्क में क्या डिफरेंस है, और एक अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इन क्वार्क में क्या डिफरेंस है। जब इस बात को फिजिक्स विचार करेगा तो लगेगा कि कुछ इससे माइक्रो है, इससे सूक्ष्म है, जिससे ये बना है, वो ये सोच लेगा कि ये इटर्नल है, और जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। रीजनिंग पावर से देखिए, मैथ हो, एक्सपर फिजिक्स चलता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स, इन तीनों में भी अगर रीजनिंग पावर का प्रयोग नहीं हुआ, तर्क और ऊहा, इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो एक ही प्रयोग दो रिजल्ट लाता है। किसी भी पेशेंट का पैथोलॉजिकल लैब में जांच कराएं, एक्सरे का एमआरआई कराएं, और 4 फिजिशियन को दें, आप अलग अलग डायग्नोसिस करेंगे। जिस फिजिशियन का जैसा लेवल होगा वैसा डायग्नोसिस करेगा वो। No, you are just a minute. You are changing the level of discussions to a different category. When coming to
biological systems. Even science doesn't know whether, ये उदाहरण है, example. say, in terms of behavior of the cognitive, say cognitive behavior or behavior of the brain function. Scientists, they are not really sure whether you can understand the subjective element in brain function, like the term called qualia. It's a redness of red. A flower is red and the subjective element is redness, because your understanding of redness and my perseverance of redness, we cannot communicate. This is subjective element. And the problem is that with science, we are not in a position to distinguish or whether laws of physics can explain these things. This is the last frontiers of physics, we can say, whether we need a different paradigm. So this is a completely different field, like living system. Physics deals mainly, up till now, the non-living objects. So please don't mix up, because आचार्य जी, शिशिर जी कहते हैं फिजिक्स का जो एरिया है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तक है। फिजिक्स अभी जो आपका बायोलॉजी है उसमें नहीं गया है और हम उसके आधार पे फिजिक्स की बात नहीं कर सकते हैं। तो केवल जो फिजिकल नॉन लिविंग का क्षेत्र है वहीं तक रहे, दूसरे आगे कहीं घुसपैठ हम न करें तो ठीक रहेगा। ये तो एग्जाम्पल है ना। नहीं, एग्जाम्पल भी उसी लेवल पे दे तो फिजिक्स जो फिजिक्स है वो फिजिक्स उस पे करता है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव चीज है। मेरे विचार में कुछ हो सकता है, अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में डिफरेंस है, इस बात पर विचार करेगा कि नहीं करे? He wants to say we are going to try to find out the difference between quarks and anti-quarks, up, down quarks or positron, electron. Yes, physics has definite way to distinguish between quark and anti-quark or positron and electron. We can understand with experiments. फिजिक्स ने इनका एक्सपेरिमेंटली सिद्ध कर लिया है कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्वार्क में क्या अंतर है, एंटी क्वार्क में क्या है। फिजिक्स में यहाँ कोई संदेह नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंटली सिद्ध किया है। वो अंतर समझा है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मास सेम है, ये समझा। लेकिन ये क्यों है ये तो नहीं समझा ना। पदार्थ, इसके ये पदार्थ क्या है, इसके कंटेंट्स में डिफरेंस नहीं हुआ तो इनमें डिफरेंस हो ही नहीं सकता। No, again you are raising the term padarth, and we are not in accord. The matter and padarth, matter in science and padarth, we are not able to explain exactly what is matter in Vedic science. You are saying padarth means many things. As far as I know, in Vedic wisdom, even like Raghunath Shiramani, he talked about space, time, they are like type of matter or substance. But in physics, we don't say space, time, they are matter. So we need to understand more closely what is the difference between matter and what you call padartha. वो कहते हैं कि पदार्थ शब्द का प्रयोग करते हुए हमें सावधानी से इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ क्या मैटर है और मैटर नहीं है तो उसके लिए दूसरा शब्द, वही शब्द प्रयोग करें। क्योंकि हम लोगों में प्राय ये रहता, हम किसी चीज को पदार्थ बोल देते हैं, परंतु जब किसी टेक्निकल विषय में चलते हैं तो टेक्निकल टर्म्स के आधार पे ही चले ताकि दूसरे को कंफ्यूजन न हो। क्योंकि जब हम मैटर की बात करते हैं उसके लिए अंग्रेजी वालों को हिंदी पढ़नी पड़ेगी, जब समझ में आएगा। क्यों अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है तो पदार्थ के लिए अंग्रेजी में शब्द कौन सा प्रयोग करें? वैसे इसमें कर्म पदार्थ, प्रॉपर्टी भी पदार्थ, ऐसा अंग्रेजी में शब्द लाइए जिसमें कर्म भी आ जाए, द्रव्य भी आ जाए और गुण भी आ जाए। ऐसा कोई अंग्रेजी में शब्द हो तो बताइए। No, this is the attack normally against the modern science. Okay, but what I can say, the modern science we are talking, that is the creation of the European science. Quantum mechanics is not the creation of ours. It might be in Vedas, but we have not revealed that up till now. It is created, Max Born told it's creation of European science. But okay, that is very strong statement. But when we say modern science, we have to be more careful. You can reveal, say, like technology. I asked many people who are working in Vedic knowledge and Vedic system of knowledge, and
they say that all the technology, all the terminologies which we use in modern science, that is also there. But we ask a very simple question. I mean, this is very, very important for the young generation. Can you discover a new technology which is not now? And we can say to the world that, look, this technology was there, which is not here, and we can develop it. We asked the questions to many, many Vedic scholars, but we didn't get any answer. I mean, otherwise, why young generations will come? Young, serious scientists will join us. Yeah. वो कहते हैं कि ये जो क्रिएशन का कंसेप्ट है या जो क्वांटम का कंसेप्ट है, दिस इज द क्रिएशन ऑफ वेस्ट, ये उनका कंसेप्ट है। यदि वेद में क्वांटम का कंसेप्ट भी रहा है तो उसको तो अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं किया है। प्रायः जो वैदिक विद्वान हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी में जो शब्द आते हैं, वो ये बोलते कि हाँ ये हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। तो इसलिए जो यंग माइंड है वो वेद की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम उनको ऐसा कुछ दिखा नहीं पा रहे कि ये देखिए बिल्कुल वेद में है, ये मॉडर्न साइंस में नहीं है। हाँ, इसका उत्तर हमारी थ्योरी में वो है जो आधुनिक है। ये बात मेरे को प्रोफेसर अजीत राम वर्मा जी ने की थी, एनपीएल के डायरेक्टर रहे थे, पद्म भूषण। ये बात एक और पीआरएल के साइंटिस्ट ने कही थी, तो मैंने कहा था, मेरी पहली पुस्तक थी बेसिक मटेरियल कॉजेज ऑफ क्रिएशन, हिंदी में थी, अंग्रेजी में नहीं। तो मैंने कहा जो आप जानते हैं बिग बैंग जिसकी चर्चा है वो गलत है इस पुस्तक में, जो आप नहीं जानते वो पुस्तक में है। जो आप जानते हैं उसका खंडन किया है, जो आप नहीं जानते उस पुस्तक में है कि सृष्टि कैसे बनी। बिग बैंग नहीं सबसे पहले क्या था, वो क्या है। तो हम साइंस कहता है उसको हम कहते हैं साइंस। मैं कह रहा हूँ साइंस इटर्नल जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनका स्ट्रक्चर नहीं जानता, हम जानते हैं। 6 लेवल पीछे जाते हैं। साइंस स्पेस का स्ट्रक्चर नहीं बताता, हम बताते हैं। स्पेस से करीब 5 लेयर स्पेस पीछे की बात करते हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकता है कोई कि साइंस कहता है, वो हम कहते हैं हमारे वेद में। दूसरी बात, रही बात टेक्नोलॉजी की, इसके लिए मैं रिचर्ड फाइनमैन का एक विचार, फाइनमैन ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी, आइंस्टीन ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, मैक्स प्लैंक ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, स्टीफन हॉकिंग ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी, एलन गुस ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी। किसने टेक्नोलॉजी? सारे नोबेल लॉरेट जितने हैं उनकी लिस्ट देखिए, उसमें किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दी। सारे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। और फाइनमैन लिखते हैं देयर आर theoretical physicists who imagine, deduce and guess at a new laws but do not experiment, and there are experimental physicists who experiment, imagine, deduce and guess। तो मेरा काम थ्योरी देना है। अभी हिग्स बोसन, पीटर हिग्स ने कौन सी टेक्नोलॉजी दी? एक कल्पना दी। सारी दुनिया 61 साल काम करती रही हिग्स बोसन पर, मेरे साथ कौन है? Okay, no, let me interrupt. अगर आप लोग आएंगे हमारे साथ तो टेक्नोलॉजी भी बनेगी। No, let me interrupt. Do you know why string theory is not accepted among the scientific community? The reason is that a physical theory must have some characteristics. I mean, it has some predictable power which can be verified in the laboratory. One day, the famous mathematician Kurt Gödel and Albert Einstein, they stayed in the same locality of New Jersey. So one day, Kurt Gödel came to Albert Einstein and said, Albert, I found a new solution to your equation, which you did not find. Einstein told, okay, keep it with me. After a few days, Einstein came to Gödel's home and said, yes, your solution is right, but it is not physical. So we cannot take it as a solution for a physical theory. So any physical theory must have some kind of predictability which can be verified in the lab itself. Otherwise, that's why the people don't take string theory in that way, because string theory doesn't have really any kind of prediction which can be verified in the lab. So only mathematical theory does not do anything. In modern science, we have all the theories, even Einstein's theory, general theory of relativity, that had a
prediction which has been verified experimentally. So this is very, very important in understanding the development of modern science. मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट में कहते हैं जो थियरी प्रिडिक्टेबिलिटी जिसने कुछ प्रिडिक्ट किया और वो जो प्रिडिक्शन है जब लैब में वेरीफाई होती है उसी मॉडर्न थियरी को माना गया है। स्ट्रिंग थियरी को नहीं माना गया क्योंकि उसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं थी जो वेरीफाई की जा सके। तो शिशिर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब थियरिस्ट थे, थियरी थी इनकी, परंतु वहां पर प्रिडिक्टेबिलिटी भी थी, प्रिडिक्ट भी हुआ और जिसको लैब में वेरीफाई किया गया तभी इनको नोबेल प्राइज मिला, ऐसे नहीं मिला। ये बिग बैंग का जो प्रेडिक्शन है वो वेरीफाई हो गया क्या लैब में? No, because this is a speculative theory. Big Bang is still a speculative. बिग बैंग ये कहते हैं बिग बैंग जो है स्पेक्युलेटिव थियरी है, वो एक स्पेक्युलेशन है, जैसे आदमी स्पेक्युलेशन करता है, अनुमान लगा लेता है, उस प्रकार की है, वो कोई प्रूव थियरी नहीं है। Only something in Big Bang, in context of Big Bang, there are several pillars of Big Bang theory. One pillar to explain the 2.7 degree Kelvin radiation, background radiations. So there are some pillars of Big Bang theory and some can be explained only with Big Bang theory, but some other pillars cannot be explained. That's why the community as a whole, they don't accept it. I am not in favor of Big Bang, but still it is the best theory available which can explain most of the phenomena. ये कहते हैं बिग बैंग में भी कुछ स्तंभ हैं, उसमें कई स्तंभ हैं और कुछ चीजें तो बिग बैंग से ही प्रूव होती हैं, इसलिए वो सभी स्तंभों को, सभी पिलर्स को वेरीफाई नहीं करता या उसके बारे में नहीं बता सकता, परंतु कुछ को बताता है। फिर भी उस दृष्टि से बिग बैंग जो है सबसे अच्छी थियरी है, परंतु शिशिर रॉय उसको नहीं मानते। वहां भी वो भी बिल्कुल वो नहीं है, कुछ चीजों को उससे प्रूव किया जा रहा है, जैसे 2.7 केल्विन का वो जो है वो बिग बैंग से प्रूव होगा। बिग बैंग ऊपर खरबों डॉलर खर्च हुआ अब तक सारी दुनिया ने किया। एक संभावना दी, एक टुकड़ा दी, हिग्स बोसन होता है, उसका नाम भी रख दिया। सारी दुनिया ने 61 साल में कितना खर्च किया? स्टीवन आइंस्टीन की ग्रेविटेशन वेव को 100 वर्ष बाद खोजा गया, जिस पर मैंने प्रश्न उठाया और नोबेल पुरस्कार विजेता उत्तर नहीं दे पाए, और मेरे उत्तर आया कि थॉर्न उत्तर नहीं मिला, केवल ईमेल आया, धन्यवाद किया और जो भी है। तो अब आप सोचिए कि किप थॉर्न ने एक कल्पना दी थी कि ऐसा कोई बोसन होना चाहिए, उस पर भी मेरे प्रश्न है, इस पर किसी के पास उत्तर नहीं है। मैंने प्रश्न पूछे तो एक कल्पना पर, एक प्रेडिक्शन पर सारी दुनिया ने 61 साल विश्वास किया और विश्वास के साथ अरबों खरबों डॉलर खर्च किया। सारी दुनिया के 70 देश लगे, 8000 साइंटिस्ट इंजीनियर रहे, तब उनको तो विश्वास करते रहे। ऐसे तो कल्पना मेरे वेद विज्ञान में सैकड़ों है जो धीरे धीरे उस पर विश्वास करिए। अच्छा, आपके पास सारा बजट है, आपके पास क्या है? No, I can respond to your query. No, because अब आप सोचो मैं विकसित कर लूं, मैं मैथ बना लूं, मैं टेक्नोलॉजी बना लूं, मैं एक्सपेरिमेंट कर लूं, सारी दुनिया को बता दूं और सहयोग किसी का नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं जानता हूं फिजिसिस्टों को कितना काम करते हैं उनका। No, basic issue is that Kip Thorne did not give your answer of the questions, or somebody else did not give you. The reason is simple. Reason is like it's a lack of communication. Your language and Kip Thorne's understanding, his language is different. We have to communicate like Vedic scholars. I know many things speculative way, secondary, tertiary sources. So if I ask one Vedic scholar and say your frame or your statement is not really right, so we have to frame such a language so that it will be communicable. Communication is very important. Yeah. No scientist he will be so dogmatic. No, I don't want to listen it. There are
but most of the scientists are not of that nature. They want to listen if you can put your question or queries in their proper statement or proper language. So that this is a question of language. वो कहते हैं कि ये भाषा का जो दूरी है उसके कारण आपको ऐसा होता, नहीं तो मोस्टली साइंटिस्ट अगर कम्युनिकेशन ठीक उनको पहुंचे तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लैंग्वेज का एक बैरियर है आपके और सब, क्योंकि जो विज्ञान की विधा है। उत्तर दिया लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं है, कहा कि मैं अभिभूत हूं, मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। No, Prashno may be that question, or Prashno may be not well formulated according to his understanding. दो क्वेश्चन तो यही थे कि स्पेस में से मास नहीं होता, तो चार्ज पार्टी होते हैं, कैसे करते हैं, अर्थ में चार्ज नहीं है तो No, it's distorting. Your voice is disturbing. आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है आचार्य जी, आपकी आवाज है ना टूट रही है कुछ से। पता है अब थोड़ा नेटवर्क बंद है ना, तो वाईफाई से चल रहा है काम, या इंटरनेट बंद किया हुआ राजस्थान में। ओह अच्छा, राजस्थान चला रहा है। हाँ, और मैं भी एक गांव के बाहर रहता हूँ। ओके ओके। आप सीकर में हैं? सीकर में रहते हैं? सीकर में रहते हैं? जालोर जो है भीनमाल कस्बा के 8 किलोमीटर बाहर है, खेतों में। हाँ, वहाँ राजस्थान में इंटरनेट प्रॉब्लम इज देयर इन राजस्थान। सभी काम में टाइम चाहिए, सभी काम में टाइम चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। बिना टाइम सहयोग की तो कोई भी साइंस आगे नहीं बढ़ सकता। मॉडर्न हो चाहे वैदिक हो, कोई भी हो, धीरज रखना पड़ेगा। नई चीजें हजारों वर्ष से लुप्त हो गई तो एकदम तो प्रकट नहीं हो जाएगी सब। और फिर पहले पढ़ेंगे वेद विज्ञान लोग, तभी तो मालूम पड़ेगा। अभी तो पढ़ाई नहीं ना, अभी तो विशाल की पुस्तक भी पूरी तरह समझ में नहीं आई होगी, मुझे लगता है। इंग्लिश में थी तब भी, इंग्लिश में अच्छी तरह ट्रांसलेट कर भी नहीं सकते, ये भी बात। No, so the issue is if you cannot translate properly in English, then how do you think that it will be communicable to a person who knows English? Yeah. Either you should learn English or he should learn your language. एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कम्युनिकेबल होना चाहिए ठीक लैंग्वेज में, तभी इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश में भी वही शब्द अलग अलग उसमें प्रयोग होता है। अगर आप उसका मीनिंग गलत निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो वो जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज पे सारा विज्ञान की चर्चा होती है, बात होती है, उसके टेक्निकल टर्म्स को उसी प्रकार से यूज करना, उस दृष्टि से वो तभी दूसरे तक आप अपनी बात का संप्रेषण कर सकते हैं। वो महर्षि दयानंद जी से कहा था, वेदों का भाष्य अंग्रेजी में करे, अंग्रेजी अनुवाद कर, नहीं उनको हिंदी पढ़नी होगी, क्योंकि जिस शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है, पुअर लैंग्वेज अंग्रेजी, तो अब उसको संस्कृत से तुलना कर देंगे। मैं कोई इंद्र तो अंग्रेजी में बताऊं, कैसे बताऊंगा? नहीं, वो हम ये डिबेट नहीं कर रहे हिंदी हो, ये तो अपनी समस्या बता रहे हैं। डॉक्टर आर्य जी, अंग्रेजी वालों ने जो पंच महाभूत है उनमें पृथ्वी को अर्थ कह लिख दिया, जी, जल को वाटर लिख दिया, बिल्कुल, और वायु को एयर लिख दिया, तो गलत है। गलत होगा, क्या करेंगे? दूसरा शब्द नहीं उनके पास, तो कैसे वही शब्द लिखना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, वो शिशिर जी तो यही कह रहे हैं, हम आप लोगों का ज्यादा इंटरेक्शन क्यों नहीं हो पाता, कि कम्युनिकेशन गैप है। हम आपकी बात को नहीं समझ पाते, आप हमारी बात को नहीं समझ पाते, उसलिए फिर क्या है कि ज्यादा इंटरेक्शन, प्रभावी इंटरेक्शन नहीं हो पाता। प्रभावी नहीं होता, इंटरेक्शन तो हो जाता है परंतु इतना प्रभावी नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा जिज्ञासा है वो तो आते हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है वो तो आते हैं। जी, एक साइंटिस्ट हमारे प्रोफेसर संदीप जी स्वीडन छोड़ के आए, क्योंकि वो अंग्रेजी भी जानते थे, उन्होंने समझा बहुत ज्यादा। एक अब जर्मनी से भी एक सोचते हैं हम आपके साथ आ जाए, आए, ऐसी बात नहीं है। एक प्रोफेसर मगध यूनिवर्सिटी से फिजिक्स के, वो कह रहे हैं मैं छोड़ के आपके पास आ जाऊं, ऐसी बात नहीं। जब इच्छा होगी आचार्य जी, आपकी एक पुस्तक अंग्रेजी में मेरे पास भी आई थी, परंतु वो पुस्तक की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। जो आपके पास ये स्वीडन छोड़िए जो आ रहे हैं, मैंने भी देखा था, वो उस पुस्तक का जो अंग्रेजी भी है ना, वो अच्छा नहीं है। मेरे पास है एक पुस्तक, मैं देख रहा हूँ।
अब कोई अनुवादक को बताइएगा, अच्छा अनुवादक को। हमारे ये जो अनुवाद किया ना प्रोफेसर डॉक्टर हार्दी, उसने पैसा नहीं लिया, उसने पैसा नहीं लिया। हाँ नहीं, पर वो जो उसने जो अनुवाद किया ना, वो जब उसने अनुवाद किया, वो आपकी जो हिंदी थी, जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी, उसको ठीक नहीं समझ पाया, इसलिए वो पदार्थ को कहीं मैटर कहीं सब्सटेंस लिखता रहा। और जब आप ये दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर आपका जो अनुवादक है, जब तक वो आपको ठीक नहीं समझेगा, आपकी भाषा नहीं समझेगा, तब तक वो अनुवाद भी ठीक नहीं कर सकता है। तो आपसे अनुरोध है, आप करने का प्रयास करें। अभी कभी आपको भी काम दे सकते हैं। नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास तो बहुत पैसा, फिर भी मैं आपसे इंटरेक्शन रखूंगा। अभी ये शिशिर जी के माध्यम से मेरे पास पैसा नहीं है कि प्रोफेशनल ट्रांसलेटर लाकर के अनुवाद करा सके, उसको साइंस भी आवे, वैदिक भी आवे। आप कहाँ से ढूंढूंगा? अब आपकी दृष्टि में कुछ दे दिया। ये आपके जो शिष्य हैं वो ट्रेन हो जाएंगे ना, ट्रेन हो जाएंगे तब होगा। देखते हैं, करते हैं। चलो, अच्छा डायलॉग अच्छा रहा। शिशिर जी, यू वांट टू से एनी अदर थिंग, कमेंट? Yeah, I mean, there are some tricky questions, like, in modern cosmology, there are some large numbers, like Hubble constant, age of the universe. So these numbers is, in Vedic cosmology, is there any method to estimate these numbers? What is the age of the universe? What is the, whether it is comparable to modern science or Big Bang cosmology or not, or I told Planck level. So do you have any such calculation, method of calculation to estimate the number? Because in experiment, in all physical theory, experiment you have to do with the numbers. You frame a theory, and ultimately you put that this number you verify in the experiment. So whether you have a methodology by which you can calculate and say, well, this is the number, we can get it from Vedic cosmology. ये पूछना चाहते हैं, वैदिक कॉस्मोलॉजी में क्या कोई मेथड है जिससे जो यूनिवर्स की आयु है उसको हम निकाल सकें? अब ये इतना बनता है, क्या कोई ऐसा मेथड है, सिस्टम, जैसे ये आप प्लैंक थ्योरी में है और उसमें है? तो वो पूछना चाहते हैं। इस विषय में मैंने अभी विचार नहीं किया। He has not considered, अभी काम, he has not done any work on this concept so far. Yeah, because this is needed. And one more thing I can tell you. Yeah. This is very important, like concept of atom in Vaisheshika. Yeah. In other areas like metallurgy, like Ayurveda, lot of experimentation have been done. Yeah. But in considering the concept of atom and its experimental things, no experimental experiments have been done, or we know it in Vedic science or Vedic literature. But whereas in other fields like Ayurveda, like chemistry, like metallurgy, they have did it. So we are really surprised why the rishis, they did not talk about experiments in case of physical science. तो हमारे ऋषियों ने जो फिजिक्स में या जो फिजिक्स के कंसेप्ट थे उन पे कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं की, और न अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया। यद्यपि आयुर्वेद में, मेटलर्जी में बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ये क्यों ऐसा रहा? अमेरिकन एक विद्वान है, डेविड हैचर चिल्ड्रेस, उन्होंने पुस्तक लिखी है एंटी ग्रेविटी। उसमें प्राचीन ऋषियों की टेक्नोलॉजी बताई है, विषय संबंधित। इंटरस्टेलर प्लेन, भीम का प्लेन, महाभारत में भीम, महाभारत में नहीं है लेकिन उसमें दिया उस विद्वान प्रोफेसर ने। श्री राम शिलोंग से गए प्लेन से, ये इसका अर्थ है कि हमारा साहित्य यहाँ से बहुत सारे चला, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो आज भी है। सत्यपाठी जी ने संसद में बोला था, चाइना में कुछ पेज पांडुलिपि मिली संस्कृत की, उस पर
सैटेलाइट प्रोग्राम विकसित हुआ और हमारे साइंटिस्टों ने उन्हें नकार दिया, IIT वालों ने। जी हमारे साइंटिस्टों में कुछ नहीं है, लेकिन चांद वाला का स्पेस टिका हुआ है, वो सैटेलाइट का आगे बढ़ा। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे साइंटिस्ट हमारे ही ग्रंथों को महत्व नहीं दे रहे, लेकिन दूसरे देश ऐसे में मत बताओ। मेरी वैदिक थ्योरी नासा का नासा में पहुंच गया मेरा, लेकिन हमारे यहाँ मान्यता नहीं मिले। हमारे यहाँ मान्यता कब मिलेगी? नासा का कोई बोलेगा, कोई अंग्रेज बोलेगा, कोई जापानी बोलेगा, कोई जर्मन बोलेगा, तब कहेंगे हाँ वैदिक रश्मि थ्योरी। तो ये बहुत रास्ता है हमारा। पहले टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी चोरी चले और टेक्नोलॉजी विकसित होने में टाइम लगता है। पहले थ्योरी तो स्थापित होने दी हमारी, धीरे धीरे आएगी। एक साथ एक व्यक्ति सब काम कर सकते हैं। मॉडर्न में भी एक व्यक्ति को बाकी कुछ नहीं हो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं हो, कोई किसी का को विकसित कर सकता, और कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी काम शुरू हुआ है, अभी देखते जाइए। किसी राज्य काम कर रहा हूँ, अभी जुड़िए ना। आपकी आवाज कटने लगी, आप अपनी पिक्चर बंद करें, केवल बोलें। आपकी ना आवाज कट रही है, आप अपनी पिक्चर को बंद कर दें और साउंड रखें। मेरे ख्याल में कुछ ठीक से आवाज आएगी। अब आ रही है? हाँ आप बोलिए, मेरे ख्याल में आप ठीक रहेगा। जी जी अब आ रही, सुन बोलिएगा। जी बोलिए आचार्य। हाँ मैं ये कह रहा था जी कि इतना सारी टेक्नोलॉजी थी भारत की, जी विदेशी लोग नाम उठा रहे हैं उन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके, और भारतीय साइंटिस्ट को महत्व नहीं देते। एक उदाहरण दिया मैंने जी कि चाइना का सैटेलाइट का प्रोग्राम उस आधार पर है जो उस अमेरिकी प्रोफेसर ने लिखा है, लेकिन हमारे IIC के ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने कहा था, मैंने वो पुस्तक मंगा के पढ़ी है जी और हमारे देश के PM को भी लिखा है। ऐसे थ्योरी काम चल रहा है, मुझे पता है कि नासा में पुस्तक है, लेकिन भारतीय जब भी मानेंगे जब नासा वाला कोई वैदिक रश्मि के बारे में बताएगा, दूसरे बताएगा, वेद का नाम नहीं लेगा तो मान लेगा। तो काम करने वाला भी मिलकर के काम करे तो पड़े, नहीं तो हम बहुत रहेंगे। आई सेइंग ओके आचार्य, मैं थोड़ा सा शिशिर जी ये कह रहे हैं कि देयर वाज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड मैनी पीपल इन द वर्ल्ड दे आर वर्किंग following this Vedic technology, but the problem is that even his book has gone to NASA, but they are not. His theory will be accepted only when the NASA scientists say it's okay, nor it's not going to be accepted. Moreover, there is an issue of funding. It doesn't have any funding, and the modern scientists have a lot of funding, so there are many people working over there. But in Vedic science, the few people are working, and they don't have any getting any aid or financial things, and so the need is for a collaborative work to come together, so that this work maybe more and more work, research work may be done in this area. Yeah, I do agree, and maybe we can stop the discussion for the future meetings. Yeah. So can we invite any questions now? Some people they have I think no, you keep the questions with you. His hand up. Or I may invite one or two comments. I think Professor Chand Bharadwaj, he wanted to say something. Professor Chand Bharadwaj. Thank you very much, sir. Thank you very much for giving me the small little opportunity to talk on this. Only it is something wonderful, today's discussion's been so encouraging, and that really prompts me to say a few suggestions here. One is that we should really work that there should be a student of Sanskrit, a student of science, and one of English together. It is a trio
and they should together get the PhD degree on the work they will be doing, so that all those problems which Dr. Sisir Roay has explained and Acharya ji has said, so we can have a joint venture, so that all those words, and their proper meanings and what does it mean, under the guidance of all of you rather. Some people of the science which are related to Sisir ji, and some people from the Vedic physics, and some people from Ravi ji, because this is what is a wonderful work which can be done, and something new and innovative can come in, because they will be working together, and these three students can there may be many groups out of them taking one step each, but they should have a joint PhD by these three people, so that something really wonderful comes out of that. And whatever you have discussed today in this meeting is so encouraging. So points are so well taken up, and because the science is thinking that material created consciousness, whereas the Vedic people think that consciousness created material. So how non-material created the material has to be understood very rightly. And what are those parts played by Higgs boson or goddamn particle they've been calling it, and how the absolute intelligence capable force is operating the whole cosmos. We think it is an intelligent design. Even a blade of grass is intelligently designed. So cosmic cognitive restructuring is needed. Right. Whether the science looks at it, but then they should add the whole cosmos, the basics, as I'm saying, that how non-material created the material. And then how life started on it from a single cell to graduate to the crown of creation, the human body. And what all has happened, and what is that energy which really runs this system. So let me say that our body is a hardware, and the mind is a software with lots of viruses in it. And the operator is your creative intelligence, which you may call it as soul, which remains connected to its source in real time, all the time, which is absolute intelligence capable force that is organizing the whole cosmos. Sometimes we say it is an expanding universe, but how it is expanding? What are those parameters it is working on? So each individual is exactly like the whole cosmos. As I'm saying, the cosmic cognitive restructuring means the cosmos has got floating material bodies made out of 100 and odd elements. We may call it as Panchatattva. Then it has got a universal mind, and that mind is embedded with information system and laws of nature. 2G, 3G, 6G internet is all operative, and there is an energy which is energizing both of them in each atom. So if we can take up these kind of things, and have a basic understanding that creation is this, and let us sort out each and everything scientifically, what science is saying, what Vedas are saying, and the experiential part is meditation, very rightly you said. So what we said in our camp here, we would like to say that meditation is not focusing of attention. It is practically withdrawal of attention to that location from where your attention operates. And we have found out the location, behind the eyes. Two optical nerves meet at the center of the head, where ears are also connected. So that is the location of the creative intelligence which remains connected through Brahmarandra to its source. And this is how we can understand few things with basic philosophies, and start analyzing these philosophies into all those aspects, So thank you very much for giving me this small. Professor Sisir Roay ji, we are developing a course on spiritual literacy. Professor Bharadwaj is handling that. Yes, sir. Yes, sir. And so I think here I found Dr. Sandeep Kumar also. He is the associate of Acharya. If he wants to comment something, he is invited. If you want to say something about this dialogue, because you have been associated with the
Acharya Naishthik ji, Dr. Sandeep Kumar. So, Arun Kumar Upadhyay ji, you want to have a small comment? You are not audible. You are not audible. Unmuted. I will take about 4 or 5 minutes. Okay. So I have concentrated on the measurement part of the science in Vedic literature, and it started with the Gayatri Mantra itself, where we recite the name of 7 lokas or 3 lokas. So unless we have measurement of each cosmic structure, we cannot name 7 lokas. This was my concept, and I found that the measurements are very accurately given in 6 or 7 different units of galaxy, solar system, and the whole universe, and the time scale also has been measured. But unfortunately, we don't have any technical textbook. Even Surya Siddhant gives only methods of calculation. It doesn't give how these figures were obtained or measured, and what is the method of measurement. These things have not been given. So all the commentaries on Surya Siddhant, technical commentaries by modern scientists or mathematicians, they have not explained about 90% of the things. Like measurement of galaxies given at the end of the Surya Siddhant. It is given very accurately, and it is given in all the Puranas, and at 2 places in Rig Veda itself, measurement of galaxy, which is very accurate. But it is not known how these measurements were done. These technical methods have not been given. There are some hints that the distance at which sun will look like an average star will be diameter of galaxy. This is one concept. Then another concept is given that starting from man, size of Earth, solar system, and galaxy will be successively 1 crore times bigger. So all these are approximately correct, but the exact method of measurement is not known. Similarly, time scale, like what is Brahma's day or kalp. Gita also tells that 1000 yuga means 4.32 crore years are a day of Brahma. So there is a hint in Surya Siddhant last chapter that the time in which Earth will move around galaxy is the day of Brahma. So by average orbital speed, if Earth moves around galaxy, that period will be called the day of Brahma. That means the galaxy is about 432 crore times the size of Earth orbit. This is the simple technical meaning. Similarly, the definition of Brahmand, that at the end of Brahmand, sun will look like an average star. That is called Parampad of Vishnu. Tad Vishnu Parampadam Sada Pashyanti Surya. Surya means generally learned man. But in Satpat Brahmana, there is another definition. And it is very surprising that it gives exact count of number of stars in the galaxy, that it is around 100 billions. In Satpat Brahmana, it is exact measurement is given, and it compares with the time scales. Like measure of unit loom girth or Swadayan. Swadayan takes about 11,20,000 parts of a second, and it tells that raindrops fall up to for that distance in that time. Means about 270 meters is the average distance of raindrops falling, and the time taken by light in the to cover that distance is called Swadayan. So measure speed of light and distance of raindrops falling freely in atmosphere, they are compared. So these things are very surprising measurements, and that will take another lecture, how these measurements are done. So it is not, measurements are not done, and there is I want to comment on both the modern and ancient system. There is no single explanation. In modern physics also, 2 contradictory schemes were started.
One was that unified search for unified field theory, whereas Professor Sisir Roay was quoting Professor Kurt Gödel. Gödel had proved that cannot be a single complete mathematical system, but still we were searching for a single mathematical system. Similarly, in Vedic science also, there is no single explanation, because ekam sad vipra bagdha vadanti. Word or Brahma is same, but we are viewing him through 6 darshanas. But only difference is that in Vedic science, darshans do not depend on the person. It is not Radha Krishna's philosophy or Bertrand Russell's philosophy or Hegel and Kant philosophy. They are classified as per the subjects of the or methods of thinking, not as per persons. Yeah. So in Vedas also, the main difference what I found in the measurement part, that we consider that yojan means one thing only. There are 7 types of yojan, like there are 8 types of units of length in modern physics also. So in Vedas there were 7 types of length units. Similarly, time units are of 9 types as described in Surya Siddhant. So we have to consider alternative theories or rather combination of theories both in modern science and in Vedic science. Thank you. And detailed explanation will be another lecture. Thank you, Upadhyay. And anybody else, he wants only short comment. I would like to have any short comment from the audience if you want to have. And Nora, I'm going to thank everybody. Everybody gave a very patient hearing. It was really a very serious discussion. And I think everybody would have found this discussion very interesting. And this is the first time, I think, when a Vedic scholar is interacting with a modern physicist through online mode. And I must thank you, Professor Sisir Roay, for giving patience hearing to the Vedic scholars, although he's a very renowned modern physicist. And sometimes the physicists, they don't care about the Vedic physicist, but he's so keen and he's very interested. In fact, his main aim is just to gain the knowledge and to unravel the mysteries of the nature. That is the basic thing. That is the basic quality of a scholar. A scholar or a scientist, he's always busy in finding ways and means and things which needs to be unearthed. So, and I am also very much thankful to Acharya Agnivrata Naishthika ji. He also gave his precious time. I think Professor Sisir Roay, he informed me some month ago. We want to have a chat with him. Then he told that he's working on Nirukta. Once he's going to finish the translation of Nirukta, then he's going to talk, because his attention is diverted into that direction. So he's also a serious scholar working in a scientific field of the Vedas. Given the resources, the limited resources, and whatever he has, he's just maintaining himself at his own level. He's not getting any financial or any other type of aid. And I think, as Professor Bharat was told, the need is to come together, such like-minded scholars who are interested in this type of unraveling the mysteries of creation and the universe. The need is to come together. And I think we'll continue this dialogue. In future also, we will get together, we'll do discussions on certain issues. And I'm also planning just to have some series of lectures by different scholars. We'll start it with Professor Sisir Roay, then we'll give chance to Arun Kumar Upadhyay also on such all vexatious issues. We'll have a series of discussions. And I think today is a very special day for me, that I had a chance to learn both modern physics as well as Vedic physics. And I think Dr. Dharamveer Shyamba, he wants to say something. Yes, sir. Yeah. What I would like to say is that we human beings are limited, and we can never know the full existence of creation. We cannot know it in scientifically. As Vedic scholar has explained it properly, that we have to go in samadhi to know more,
And that is the only way where the Rishi and Muni has discovered things and they put it in books for us to complete and to learn more, to know about the existence of man and the creation. Yeah. So just want to show scientifically it's not possible, I think. Thank you. No, that's why Professor Sisir Roay is seeking a person who can go in samadhi and explain certain things in words, that for a better understanding. So we are seeking that yogi also, or a seer also, and we are seeking that seer in the person of Acharya Agnivrata Naishthika also. So I must thank everybody for making this dialogue a success and being with us throughout this dialogue. Thanks everybody, and now I must first stop recording. Thank you everyone. Thank you.